पाओगे? ट्राई करता हूँ मैम। हाँ जी करिए। ये वाला एग्जांपल। जस्ट अ मोमेंट, कैमरा को सेट होने दीजिए। यस, जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको पता चल रहा होगा a स्टार b इज इक्वल टू उन्होंने लिखा है a प्लस बी प्लस 1 और ई जेड मोनॉइड, ई जेड सेमी ग्रुप, ई जेड ग्रुपॉइड। नहीं, आई थिंक फर्स्ट वन इज ग्रुपॉइड, सेकेंड वन इज सेमी ग्रुप एंड लास्ट वन इज मोनॉइड, राइट? फेंट दिख रहा है बट it is visible that this example we have considered in the last class. Thank you, Kashyap. And we have checked, yes, we have discussed these three properties, that groupoid क्या होता है, semi group क्या होता है, monoid क्या होता है, and then we have considered the example which he has shown that a star b has to be binary operation is defined a plus b plus 1, and actually it is not only groupoid, monoid and semi group, it is actually the group, and in fact it is an abelian group, that also we have discussed. And I have told you that now we will consider the next topic. So let us start with the topic. So right now I am presenting my screen. You just let me know whether you are able to see the presentation or not. Is it visible to you? Please tell me the status of the visibility of my screen. Are you able to see? Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, thank you. So as Kashyap has shown, this is the example which we have considered in the last class. Okay, and it is turns out to be group. So today I wanted to discuss the order of the group and order of the element. So what is order of the group? So first of all, suppose you are given a group G. So order of the group is defined as the number of elements in the group, and it is denoted by small o. Order है, so that's why we have considered the capital letter, first letter small o of G. मतलब कि ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही नंबर आपका ऑर्डर का ग्रुप होगा. तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल जो लिया था सेट ऑफ इंटीजर वाला, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स? सो देर आर इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट्स. So in that case, order of G, in that case, order of what you can say set of integer is nothing but infinity, because there are infinite number of elements. Okay, so suppose I consider the set S is equal to 1 minus 1. The set is already written over here. Suppose I consider this set. See the round I have made. 1 minus 1 I and minus I. So how many number of elements are there in the set? So there are 4 number of elements. So in that case, suppose this is the set S, then I can say small o of S is nothing but 4, because there are 4 number of elements. So definition of order of a group is clear to you, that number of elements will be the what you can say order of the group. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. तो मतलब अभी जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर क्या होंगे? सो दैट इज व्हाट आवर नेक्स्ट डेफिनेशन पर्टेनिंग टू. सो सपोज जी इज ए ग्रुप विथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, मतलब कि आपको ऑलरेडी एक ग्रुप दे दिया है और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन दे दिया है. सो व्हाट इज दिस order of the element? So suppose I choose one element A from G. So order of that element A is mean the least positive integer n अगर वो exist होता है such that a raised to n is E. E is the identity element of G and it is denoted by order of A. कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, that I know. Okay, so a raised to n is equal to identity. Here you, that is what the condition is, where n is the smallest positive integer. तो a raised to n मतलब यहाँ पर क्या होगा कि a आपका कोई ग्रुप का एलिमेंट है,
star is binary operation you are given, तो a raised to n means you apply binary operation n times on a. जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 का क्यूब आपको कंसीडर करना है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2. बट मैं आपको बोलूं कि 2 का क्यूब लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप क्या करोगे 2 प्लस 2 प्लस 2 3 टाइम्स. Similarly, suppose star is the binary operation you are given. So in that case, a raised to n is a star a. How many times? n times. और जब आपको n टाइम्स अप्लाई करने के बाद ये बाइनरी ऑपरेशन उसी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट e देता है, तब हम n को दिस पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को ऑर्डर ऑफ a बोलते हैं. सो राइट नाउ डेफिनेशन इज क्लियर कि पहले आपको कोई एलिमेंट पिकअप करना है फ्रॉम दिस ग्रुप. इफ दैट एलिमेंट को आप बाइनरी ऑपरेशंस नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई करते जाओ, ए को ए ही के साथ अप्लाई करते जाओ बाइनरी ऑपरेशन, और जब आपको वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो जितनी बार आपने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है दैट नंबर इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. एग्जाम्पल के बाद ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी. Remark is, if there does not exist any of such positive integer, then we can say that A has infinite order. मतलब कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है कि जिसको आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते जाओगे और आइडेंटिटी मिलेगा, तो इन दैट केस ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज इनफाइनाइट. और कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास है, कोई भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर हमेशा 1 रहेगा. ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1. सो दिस आर 2 रिमार्क्स कि जब आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा नहीं मिलता है, एट दैट टाइम ऑर्डर इज इनफाइनाइट and order of the identity element is always 1, right? So let us consider this example so that idea about this order of an element gets clear. Order of the group is clear है आपको, लेकिन order of the n element में थोड़े बहुत confusions है. वो confusions आपके clear हो जाएंगे ये example के बाद. So what is the example? Find the order of each element of the multiplicative group 1 minus 1 I and minus I. तो आपको हर एक एलिमेंट के ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपको ऑलरेडी दे दिया है, राइट? सो लेट मी कंसीडर दिस इन द पेंट स्क्रीन. सो पेंट स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes. Okay, thank you. So here I will consider first the set S you are given is 1 minus 1 I and minus I. This is today's homework, that when you consider the multiplication of this set, this will turns out to be the group. Means closure property satisfied होती है या नहीं, associativity, existence of identity and existence of inverse. Operation you are given is just a multiplication. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए क्या होगा? That is E in this case. Let me ask it to number, which number should I call upon? 81 number. Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? Identity. Yes. कर रहा. लोडिंग की तरह आप भी लोड हो रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रोफाइल पिक्चर. What? कुछ नहीं, खत्म हो गया. ऐसी चीजें एक बार ही आएगी क्लास में, जिनको समझ में आया उनको आएगा. 1 will be the identity element. Yes, okay, thank you. 1 will be the identity element. मल्टीप्लिकेटिव पूछा है आपको, तो कौन सा एलिमेंट? सी एडिशन, यूजुअल एडिशन होगा तो 0 हर बार आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा तो 1 will be the identity element. 1 is in the set, so of course yes, it has to be, because I have already told you that verify this is a group. Okay, so E is 1. So how many number of elements are there? 4. So order of S is 4 as I have discussed. So order of S is 4. अभी हमें ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट चेक करना है, तो टोटल 4 एलिमेंट्स आर देयर, तो चारों एलिमेंट के अलग अलग ऑर्डर्स होंगे.
So let us start with the first element, 1. 1 is the identity element. Therefore, as I have described you it in the remark that order of the identity element is always 1. तो आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी मिलता है तो उसका ऑर्डर हमेशा 1 ही रहता है, चेक करने की जरूरत नहीं है. और अगर फिर भी चेक करना है तो वी विल स्टार्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला है पावर में लेने के लिए. सी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो a रेज टू n हैज टू बी e. तो n का क्या है, n इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली. सो 1 रेज टू 1 इज 1, तो डायरेक्टली आपको e मिल गया. So this condition is satisfied, therefore n is 1 over here, that's why order of 1 is 1. Let us consider now the element minus 1. तो smallest positive integer 1 से start करेंगे, तो minus 1 raised to 1 is minus 1. This is not identity because identity is 1. Then we consider the next positive power, that means minus 1 square. कहाँ तक जाना है, we have to go up to जहाँ तक, जब तक हमें आइडेंटिटी ना मिल जाए तब तक आपको पावर्स लेते जाना है. तो माइनस 1 पहले 1 पावर लिया, नाउ वी हैव कंसिडर्ड द सेकेंड पावर. सो माइनस 1 स्क्वायर इज 1 एंड दैट इज व्हाट द आइडेंटिटी. तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल गया जिसका पावर हमें आइडेंटिटी मिल रहा है. तो इम्प्लाइज व्हाट आई कैन से, ऑर्डर ऑफ माइनस 1 इज 2. देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो व्हाट विल से, ऑर्डर ऑफ a is n. So here you can compare, a is minus 1, so order of minus 1, n is 2, so therefore power that power is smallest positive integer for which we will get the identity. Then next term is, consider the third element, that is I. So I के 1 by 1 power लेते जाने हैं to check its order. So first we will consider 1. So I raised to 1 is I and it is not the identity. So that 1 cannot be the order. Then I will consider I square. So I square means I into I. See, star is multiplication we are given. That's why I have considered here the multiplication. अगर plus दिया होता तो operation change हो जाता. So I into I is minus I square and I square is minus 1, which is not again the identity. Therefore 2 cannot be the order. Then I will consider I raised to 3. So I raised to 3 is I square into I square is minus 1, so outcome will be minus I, which is not again the identity. Therefore 3 cannot be the order. But when I consider I raised to 4, it is I square into I square and I square is minus 1, so minus 1 into minus 1, 1, and therefore this is same as the identity element. Hence I can say order of I, ये condition satisfied हो गई ना, a raised to n is equal to e वाली. Therefore order of I is 4. Similarly when I consider minus I as element, तो minus I का first power तो minus I ही रहेगा. So that cannot be equal to e and therefore order of minus I is not 1. What about minus I square? So minus I square is same as I square only and I square is minus 1. Minus 1 is not the identity. Therefore this is 2 is not order for minus I. So let us consider I minus I cube. Minus I cube means minus I square into minus I. Minus I square is minus 1 into minus I. So I, which is also not the identity, therefore 3 cannot be the order. I raised to 4 is same as I square into I square and which is same as 1, that is the identity. Therefore I can say order of minus I is 4 because we got the identity when we have considered the fourth power. So element wise order are now clear, that for I and minus I 4 is the order. For minus 1, 2 is the order, and for 1, 1 is the order. That order of 1 is 1. So let us see now the definition. Now see the definition. G be a group with binary operation start. By the order of an element A belongs to G is meant the least positive integer n if one exists such that A raised to n is equal to identity. Then it is called the order of the group and it is denoted by small o of A.
Is it clear to everyone? Please give your views in the chat box that now definitions of order of the group and order of the element is clear or not. Okay. Clear, very good. ओके, वेरी गुड. तो अभी एक एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है. मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. आई विल गिव यू 10 मिनट्स फॉर इट. हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ -1 इज 2, ऑर्डर ऑफ I इज 4, ऑर्डर ऑफ -I इज ऑल्सो 4 we are getting, right? So yes, this is the example. Find the order of each element of the group 0, 1, 2, 3, 4, 5. The composition being addition modulo 6. आपको याद हो तो हमने composition table बनाया था at the beginning of the this semester, और उसमें हमने एडिशन मॉड्यूलो 7 वाला मैंने आपको दिया था, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 वाला दिया था, एडिशन मॉड्यूलो 3 and 4 I have discussed. So right now you have to consider addition modulo 6 with this elements 0, 1, 2, 3, 4, 5. It will form a group. See, Zn आप लोगे, Zn कोई भी with respect to addition modulo n or multiplication modulo n, it will always turns out to be the group. तो ये group बन रहा है, लेकिन आपको find out करना है कि elements जो सारे हैं 0, 1, 2, 5 उसके ऑर्डर क्या होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्रुप का ऑर्डर क्या है, कौन बताएगा मुझे. नंबर 50 है क्लासरूम में. विवेक कापड़िया. It's 6. Yes, number of elements are 6, therefore order of this particular group is 6. Very good, Vivek. So order of the group is clear, but now we have to find out order element wise. तो पहले 0 का order, 1 का order, 2, 3, 4 and 5 का order find out करना है. बताइए मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा. रोल नंबर कौन बताएगा. 52 नंबर. Zero, ma'am. हाँ, it will be 0. Very good. So आपको हर एक बार एडिशन मॉड्यूलो इतनी बार अप्लाई करना है ऑन द एलिमेंट कि आपको 0 मिले. इट इज 1:34 इन माय क्लॉक. आई विल गिव यू 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के अंदर आप लोग बताइए मुझे कि हर एक एलिमेंट के ऑर्डर क्या आएंगे, और आपको अगर आंसर मिलता जाता है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. आई विल डिस्कस इट आफ्टर 10 मिनट्स. करना है ना खुद से ये एग्जाम्पल.
1 के लिए क्या मिल रहा है? You can write your answer in the chat box. Okay. वेद भाई साहब क्यों डिलीट कर दिया मैसेज? गलत था इसलिए ऐसा सोच के? वेद भानुशाली, हाँ क्यों डिलीट किया मैसेज? ऐसा लगा कि सबका ये है तो मेरा गलत हो जाएगा? आई एम नॉट कंसिडरिंग इट इन दैट वे. एटलीस्ट यू हैव अटेम्प्टेड. सो अपने इम्प्रेशन के बारे में मत सोचो. दैट यू आर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, दैट इज इम्पॉर्टेंट. इज दैट ओके? सी विवेक भाई साहब भी Yes, ma'am. आपकी तरफ लेके आए हैं. देखिए कमेंट देखिए विवेक का, विवेक मेहता. So I am thinking in different way that at least you have attempted, right? Whether it is correct or incorrect, that we'll see afterwards. But right now, important is at least you have attempted. Okay. Shall I start with the solution now, or you want to attempt try by yourself? I will give you 2-3 minutes. Order of 3 is 1, 4 is 2, order of 5 is 5. Okay. Order of 2 is 2. For n is equal, and for 0 n is equal to 1 and rest all are negative infinity. Okay, let us discuss now one by one. All of you are able to see my paint screen? Yes, ma'am. Okay, thank you. So here the set you are given is 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So total number of elements are 6 over here. So this is either you can say this set is G or S. So order of S or G is here 6. And element wise we have to check the order. So first of all, this will addition modulo 6 is the binary operation you are given. What is star over here? That star is addition modulo 6. Therefore, with respect to addition modulo 6, what will be the corresponding identity element? As your friend said, that identity element for addition modulo 6 will be 0 only. So E is 0 in this case.
So as I have said, order of the identity element will be always 1. So I can say order of 0 is 1. Okay. So order of 0 is 1. Now let me consider the next element, that is 1. So 1 के साथ addition modulo. First of all, 1 power 1. Smallest positive integer means I have to start with the power 1 only. तो एक का एक पावर एक ही रहेगा. 1 is not the identity element, therefore what I can say, 1 cannot be the order. आपको कहाँ तक चेक करना है? जब तक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए तब तक. फॉर फाइनाइट स्टेप आपको जाना है, फाइनाइटली मैनी स्टेप्स पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा. तो लेट अस राइट इट एज इंफिनिटी इफ इट इज द केस. So let us consider now 1 power 2. 1 power 2 means 1 star 1. What is the condition? I must get a raised to n is equal to identity element and n should be the least positive integer. Least positive integer बोला है, so मैं 1 से start करूँगी. Second thing, a raised to a means it is, as I have said, a will be applied n times the binary operation star a, और ये आपको मिलना चाहिए e. तो अगर ये e मिलता है then n is called the order. Order of a is n. Okay, so come to this one now. 1 star 1. 1 star 1 means 1 addition modulo 6 with 1. तो 1 with addition modulo 6 क्या होता है? तो 1 प्लस, आपको अगर याद हो तो a addition modulo 6 b अगर मैं लिखती हूँ तो इसका मतलब होता है जब r रिमाइंडर बचता है. r रिमाइंडर कब? जब a प्लस b 6 से डिवाइड होता है और वॉट एवर रिमाइंडर यू आर गेटिंग दैट इज एडिशन मॉड्यूलो ए बी ऑफ दिस 6, राइट. सो यहाँ पे 1 plus 1 is 2. 2 is not divisible by 6, therefore 2 will be the remainder. तो यहाँ पे आउटकम मिलेगा 1 square का 2 only, and 2 is not the identity, therefore 2 cannot be the order. Then I will consider the power 3. So power 3 means now 1 will be applied how many times? Star. 2 times. So now 1 addition modulo 6 1 addition modulo 6 1. तो ये क्या होगा? 1 plus 1 plus 1 3 divided by 6. तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 3 only, because 3 is not divisible by 6. So this is also not the identity, therefore 3 cannot be order. Let me consider now 1 raised to 4. तो 1 raised to 4 क्या होगा? तो एडिशन मॉड्यूलो 1 के ऊपर 4 times apply. So this is third and this is addition modulo 6 1. So 1 plus 1 plus 1 plus 1 4 times, and when it is divided by 6 remainder will be 4, and 4 is not the identity, therefore 1 raised to 5 मुझे लेना पड़ेगा. तो when I consider 1 raised to 5, 1 addition modulo 6 1 addition modulo 6 1 addition modulo 6 1, how many times? तो 5 times. So addition modulo 6 1 1 1 1, 5 टाइम हो गया. Yes. So 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is 5, divided by 6. Remainder will be 5 only, because 5 is not divisible by 6. And when I consider 1 raised to 6, आपको दिख रहा है कि now when I consider this binary operation 6 times, this is addition modulo 6 1 plus addition modulo 6 plus addition modulo 6. So how many times? 6 times. So what is the outcome now? 1 plus 1 6 times, so that is 6. 6 when divided by 6 you will get the remainder as 0, and 0 is nothing but the identity element. That means this condition is satisfied, and therefore the power is 6 over here. So I can say order of 1 is 6. तो अभी आपको लग रहा है कि आपको आपके आंसर्स डिफरेंट करने हैं फॉर 2 3 4 एंड 5. आपको लग रहा है कि 2 3 4 5 के लिए अभी आंसर्स चेंज हो जाएंगे जो आपने चैट बॉक्स में लिखे हैं उससे? Yes, then tell me now. I will give you another 5 minutes. Not 5 minutes is more than enough
to calculate the addition modulo class to evaluate the order of the element of 2, 3, 4 and 5. Now you can quickly give me the answer. (57) number Abhi Kumar. Am I audible to you? Abhiji? Yes, order of 2 is 3. What about 3? Abhi Kumar. काथिरिया, क्या सरनेम है आपकी? काथिरिया, कथिरिया. Abhi, am I audible to you? हाँ जी, क्या सरनेम है आपकी? हाँ जी, What is your surname? अरे भाई म्यूट करने की इतनी जल्दी मत रखो कि आप बोलो उससे पहले ही म्यूट हो जाए माइक. अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी, बताइए क्या सरनेम है आपकी? ओके. ऑर्डर ऑफ 2 यहाँ पे आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, इट विल बी 3. कैसे आएगा आप बता पाओगे? यस मैम. हाँ जी, बताइए कैसे? टू प्लस टू 6 एंड 6 तो रिमाइंडर, तो इसलिए वो हो जाए. वेरी गुड, थैंक यू. नाउ म्यूट योरसेल्फ. देखिए 2 का पावर 1 लोगे तो इट इज सेम एज 2. दोज हु हैव रिटन 3, दैट इज द करेक्ट आंसर. When you consider 2 square, so 2 addition modulo 6, 2 लोगे तो उसका आंसर मिलेगा आपको 4. 4 is not divisible by 6, hence 4 will be the remainder. And when you consider 2 to the power 3, so it is 2 addition modulo 6 with 2 addition modulo 6 with 2, so 2 plus 2 plus 2, 6. 6 divided by 6 is divisible and remainder will be 0, and therefore 3 is the smallest positive integer such that this condition is satisfied. Therefore I can say order of 2 is 3. Similarly, when I consider next element 3, so for the next element 3 power 1 is 3 itself. So it is not the order for 3 square. 3 square means 3 addition modulo 6, 3. So 3 plus 3, 6 again. 6 is divisible by 6. Therefore remainder is 0. And this is nothing but identity element. Therefore order of 3 I can say is 2. So next element if I consider, next element is 4. So for 4, 4 to the power 1, that is 4 itself. So it is not the identity element. 4 square, that means it is 4 addition modulo 6, 4. 4 plus 4, 8. 8 when divided by 6, 2 is the remainder which is not the identity. 4 cube, that means 4 addition modulo 6, addition modulo 6, 4. So in that case 4 plus 4, 8 plus 4, 12. 12 divided by 6, remainder will be 0, that is the identity element, and hence order of 4 is 3, that is the power. When you consider 5, 5 raised to 1, 5. 5 raised to 2 लोगे तो 5 plus 2, sorry 5 plus 5, 10. 10 का लिए रिमाइंडर 4 मिलेगा. जब आप ऑर्डर 3 लोगे, I mean पावर 3 लोगे तो 5 plus 5 plus 5, 15, not divisible by 6. जब आप 4 लोगे तो it is 20, again not divisible by 6. 5 raised to 5 लोगे तो 25, that is not divisible by 6. 5 raised to 6 लोगे तो 5 into 6, that is you will get 30, and 30 is divisible by 6. Therefore जब आप 5 का 6th order लोगे, you will get the 30 divided by 6, and hence remainder will be 0, and that is the identity. Therefore I can say order of 5 will be 6.
So order of 0 is 1, order of 1 is 6, order of 2 is 3, order of 3 is 2, order of 4 is 3, and order of 5 is 6. So now is this definition clear about the order of the element to all of you? Yes. आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो अदरवाइज आप सब अनम्यूट करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा इको बढ़ जाएगा. यस. और पहले कैसे गलती करी थी वो भी समझ में आया आप लोगों को जब आपने खुद किया था तब कि ऑर्डर कैसे चेक करते हैं. ओके, वेरी गुड. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट क्लियर. इसमें हम अगर एडिशन मॉड्यूलो 6 कर दे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 कर दे तो इसी सेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 अगर कंसीडर करें तो एलिमेंट्स वाइज क्या ऑर्डर आएंगे, करना है कंप्यूट. जल्दी कंप्यूट कीजिए और आंसर चैट बॉक्स में लिखिए. क्वेश्चन समझ में आया नहीं सबको? एडिशन मॉड्यूलो 6 की जगह यू हैव टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, सॉरी 6. Of course, 1 will be the identity element here. Therefore, order of 1 will be always 1. मैंने जैसे ही बोला है, order of the identity element will be always 1. So order of 1 will be 1 only. निर्माण, infinity नहीं आएगा. Okay. मीत भाई साहब को लिखने की भी इतनी जल्दी है और मैसेज डिलीट करने की भी इतनी जल्दी रहती है. ऑर्डर ऑफ 2 इज इंफिनिटी. लेट अस सी. निकुंज 7 नंबर. Unmute yourself. निकुंज भाई साहब, आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो? यस मैम. हाँ जी, क्या आएगा 2 का ऑर्डर? मैम मैं कर रहा हूँ सॉल्व. कर रहे हो तो रिएक्शंस कम दो ना दूसरे के कमेंट्स पे, करने में ध्यान दो. समझ में आ रहा है? हाँ या ना तो बोलो. यस मैम. हाँ जी.
Okay, let us discuss. You come with the different answers. So let us discuss this. I am sharing my pin screen. Okay. So this is what the set you are given. You are given the operation as multiplication modulo 6. So identity element with respect to addition modulo will be 1. Am I right or wrong? Nirman? Yes, ma'am. एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो ऑर्डर 1 का 1 ही रहेगा, राइट? ऑर्डर ऑफ 0, सो ऑर्डर ऑफ 0 हम कंसिडर करेंगे, तो 0 के कितने पावर्स आप रखोगे तो आपको 1 मिलेगा. इज इट पॉसिबल? 0 का किसी भी के साथ मल्टीप्लिकेशन लोगे 0 ही मिलेगा, 0 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपको ऑलवेज 0 मिलेगा, मीन्स यहाँ पर आपको 1 कभी नहीं मिल सकता. सो देयरफॉर order of 0 will be infinity. Is this clear? चैट बॉक्स में लिखिए या तो अनम्यूट करके बोलिए कि 0 का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा. इज इट ट्रू? ओके, वेरी गुड. Yes, thank you. So order of 0 is infinite. What about 2? 2 के लिए क्या देखना पड़ेगा? पहले 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 लिया तो 2 itself, so it is not divisible by 6. Then when I consider 2 to the power 2, so that means it is 2 multiplication modulo 6 with 2. So 2 into 2, now 4 is not divisible by 6. So then if we consider 3, then multiplication modulo 6. So it is 2 into 2 into 2, 8, not divisible. When I consider power 4, so 2 into 2 into 2 into 2. So 8 into 2, 16, not divisible by 16. हमें क्या चाहिए? एलिमेंट चाहिए जिसके लिए रिमाइंडर 0 मिले. 0 मिले मतलब कि वो 6 से डिविजिबल बाय होना चाहिए. आप 4 के बाद 5 लोगे तो इट इज 32. 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. 6 लोगे तो 128, नॉट डिविजिबल. उसके बाद पावर अगेन लोगे 6 तो इट इज 256. 256 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6. मतलब कि आपको इसके बाद पता चल जाना चाहिए कि नेक्स्ट एलिमेंट जो 2 के पावर्स है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 6. देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 इज ऑल्सो इनफाइनाइट. When I consider 3, order of 3, तो उसके लिए I will start with the power 1. So order of 3 is not 1 because remainder is 3 only. When I consider 3 square, so it is multiplication modulo 6, 3 with 3. So 3 into 3, 9. 9 when divided by 6, you will get corresponding remainder 3 only. So which is not identity. When you consider 3 cube, so it is 3 into 3 into 3, so 27. तो ये कब divisible होगा 6 से? 3 into 3 into 3, that is 27. That is equal to 27. 27 को 6 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर बचता है? अगेन 3. When you consider 3 to the power 4, so now 27 into 3, 54. Is 54 divisible by 6? Yes or no? Yes. So therefore here you will get the identity, and therefore I can say order of 3 is 4. What about 4? तो 4 के कितने मल्टीपल्स लोगे तो वो 6 से डिविजिबल होगा. तो 4 पहला आएगा, देन 4 into 4, 16, नॉट डिविजिबल. देन 4 क्यूब 64. 64 को 6 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं. उसके बाद 124. मतलब कि कोई भी ऐसा चेन मिलेगा जो 6 से डिविजिबल होगा. अगर डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा. करस्पॉन्डिंग पावर विल बी what you can say order of that particular element. And what about 5? 5 का कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा. Am I right or wrong? मैम Yes. 3 raised to 4 में आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे मिलेगा? 3 raised to 4 करोगे तो क्या होगा? पहले तो मुझे ये बताओ. 81 होगा मैम. 81 होगा ना? हाँ 81 होगा मैम. 81 होगा. मैम नहीं होगा. यस मैम. Okay, very good. So it is not divisible. Then 81 into 3. Sorry, 6. 81 into 3 होगा. Sorry. Here. So this is not the identity. That is what my mistake is. 3 into 3 into 3. That is 27 into 3. 27
So it is 81 not divisible. What about 81 into 3 again? तो 3 के कोई भी ऐसे मल्टीपल मिलेंगे आपको जो 6 से डिवाइड होके? No, you won't get नहीं it. So मैम। for 3 also order is infinity. What about 4? इनफाइनाइट मतलब भी इंफिनिटी आएगा। 256 मैम, divisible. इनफाइनाइट ही है, उसके लिए कैलकुलेटिंग भी नहीं कर infinite सकते। होगा. Yes, yes. Then 5 के लिए भी नहीं होगा क्योंकि हर बार आपको एंड जो लास्ट डिजिट है वो 5 ही मिलेगा और 5 के लिए वो कभी 6 डिविजिबल नहीं करेगा जब आपका 5 इंटीजर होगा लास्ट डिजिट इज. तो for 5 also the order is infinite, right? So for 0 order is means except for 1 all the elements having order infinite. Am I clear? मैडम 5 के लिए तो 2 आएगा नो मैम, आएगा मैम। क्योंकि हमें रिमाइंडर 1 चाहिए. यस तो मैम 5 एग्जैक्टली। स्क्वायर 25 और रिमाइंडर 1 होगा 25 मॉड्यूलो 6, 25 modulo 6. क्योंकि हमें रिमाइंडर 1 चाहिए ना. 1 चाहिए. अभी 0 लेके चल रहे थे एडिशन मॉड्यूलो में तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. यस और नो? यस. Okay, we will discuss this example next time also. You think about this also, okay? Because it is 2-6 already. क्या अभी डिस्कस करना है? कर लेते हैं मैडम. करना हो तो कर लेते मैम, एचएस है इसके बाद। Okay, 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 okay. So see, what about 2? 2 के लिए तो इन्फिनिटी आएगा क्योंकि हमेशा डिफरेंस तो 2 बचेगा, 1 कभी नहीं आएगा ना. हमेशा डिफरेंस 2 बचेगा ही. 2 के लिए वो इन्फिनिटी ही रहेगा. What about 3? मैम 3 के लिए भी नहीं होगा। आप लोग है ना यस. कैलसी रखा ही है इतनी बार, मतलब जितनी वैल्यू वही बोल रही हूँ कि आप कैलसी साथ में रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 को 3 से जब भी आप मल्टीप्लिकेशन में लेते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि रिमाइंडर 1 बचेगा या नहीं बचेगा. नहीं बच रहा मैम। 9 के लिए नहीं बचेगा, 27 के लिए नहीं बचेगा, 81 के लिए भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. So for 3 also it will be infinite. What about 4? मैम 4 के लिए भी नहीं होगा। हाँ, 2 का डिफरेंस उसमें भी आएगा. 4 will be the remainder. 256 होगा तो भी आपको रिमाइंडर. हाँ, तो इसमें भी नहीं होगा. 5 के लिए जब आप लोगे तो इट इज 5 into 5. जब हाँ 5 का फर्स्ट ऑर्डर है, सॉरी 5 जब पावर 1 लोगे तो 5 ही रिमाइंडर बचेगा. 5 into 5 is 25 और उसको जब 6 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा. Therefore order of 5 will be 2. Is this point clear? रिमाइंडर हमें अभी 1 देखना है. क्यों रिमाइंडर 1 देखना है? Because identity element is 1. A raised to n has to be identity element मिलना चाहिए. और एडिशन मॉड्यूलो में ये आइडेंटिटी एलिमेंट 1 कब मिलेगा? जब आपका मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में रिमाइंडर 1 मिलेगा तब. तो 1 रिमाइंडर देखना है. That's why we have to consider the corresponding multiplication modulo and hence for 1 element order will be 1, for 5 order will be 2 and for the rest of the cases it will be infinity. Now is it clear? Yes. Okay, fine. Then we'll stop here today. Okay, thank you. हाँ 2 के लिए नहीं होगा तो 4 के लिए कैसे होगा? सही है. मैम हाँ जी. मैम 2 को
टू को 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा ना? कौन बोल रहे हो आप? वेद, वेद। रोल हाँ नंबर जी वेद। 5। अरे हाँ टू बचेगा ना रिमाइंडर, टू बचेगा देखिए, रिमाइंडर। 2 को 3 लेंगे आप। 8 बाय हाँ तो क्या होगा ये 2, एडिशन सॉरी 2 मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट का मॉड्यूलस है। 2 इंटू 2 बाय 6 मतलब 4, और 4 नहीं, इंटू 2 बाय 6 8 बाय 6। ये सभी एलिमेंट के साथ है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 8 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। और ई क्या है आपका? 1 है, तो दिस इज नॉट इक्वल। समझ में आ रहा है वेद? वेद, इज इट क्लियर? मैडम यस ये ग्रुप नहीं है। जस्ट अ मिनट। वेद, इज इट क्लियर? यस मैम यस। हाँ जी, ओके थैंक यू। हाँ जी, कौन है? मैडम ये ग्रुप नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी कैसे मिलेगा 1? 0 को वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट होना चाहिए ना ग्रुप के लिए, हाँ, तो वो कैसे आइडेंटिटी एग्जिस्ट एलिमेंट होगा? क्या है यहाँ तो पर? 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, तो हमें तो E1 होना चाहिए। हाँ, ग्रुप तो क्यों नहीं हो फिर रहा है? ग्रुप क्यों नहीं हो रहा है? एग्जिस्टेंस वो आइडेंटिटी वाला नहीं, आइडेंटिटी इनवर्स नहीं होगा, सॉरी। कंपोजिशन टेबल बनाया आपने? नहीं, तो कंपोजिशन टेबल नहीं बनाएंगे तब तक कहाँ से समझ में आएगा? 0 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड 5। तो 0 इंटू 0 इज 0। ये एलिमेंट्स तो सारे आपके सेम ही रहेंगे, राइट? फर्स्ट और कॉलम भी सेम ही रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा 1 इंटू 1 रिमाइंडर विल बी 1, 1 इंटू 2 रिमाइंडर विल बी 2 ओनली। जस्ट अ मिनट। मैम ये सब 0 आएंगे ना? Sorry, this will be 0. All this will be 0, and this are also will be 0 only. All this will be 0, and here 1 into 1 remainder, 1 into 2 will be remain. So this row will remain as it is, and when I consider 1, so this will also remain as it is. 3 4 5. फिर जब आप ये एलिमेंट लोगे तो 4, तो that will as it is 6, तो it is divisible. Then 2 into 4 तो 2, and 5 into 2 10, तो रिमाइंडर आपका आएगा 4। फिर यहाँ पर जब आप लोगे तो 6 0, 3 into 3 9, तो 3, 3 into 4 12, रिमाइंडर इज 0, 3 into 5 15, 15 के लिए रिमाइंडर बचेगा कितना? 3। Then if you come over here 4 into 2 8, so 0, 3 into 4 12, so 0, रिमाइंडर 4 into 4 16, 16 के लिए रिमाइंडर क्या बचेगा? So it is 12, 4 again, and here 5 into 4 20, 20 के लिए रिमाइंडर बचेगा 2। यहाँ पर 5 into 2 10, तो रिमाइंडर बचेगा 4। यहाँ पे 5 into 3 15, 15 के लिए रिमाइंडर बचेगा 3। 4 into 20, 20 के लिए रिमाइंडर 2, और 25 के लिए रिमाइंडर 1। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो भाई साहब ग्रुप नहीं है। यस मैम। देखिए ये सारे एलिमेंट, इज इट बिलोंगिंग टू द सेट 0 to 5 ओनली और नॉट? यस क्लोजर प्रॉपर्टी मिल गई। मैडम, मैं वो इनवर्स की बात कर रहा हूँ, तो A हाँ, इंटू ए इनवर्स होगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 मिलेगा, तो हमें तो E1 चाहिए ना। तो चाहिए आपको अरे पर आइडेंटिटी 1 है। आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है। आइडेंटिटी इक्वल होना चाहिए ना। हाँ तो आइडेंटिटी 1 है यहाँ पर। हाँ, तो हम 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। हाँ तो और हमारे सेट में 0 है। 0 के लिए 0 है।
मतलब आप ये पूछना चाहते हो कि 0 के लिए इनवर्स क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है? हाँ 0 के लिए इनवर्स क्या होगा आपका, ये क्वेश्चन है ना? हाँ या ना तो बोलो भाई साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ तो उस केस में 0 हटाना पड़ेगा एक्चुअली हमें। हियर वी हैव टू कंसीडर 1 to 5। 0 we have to remove when we consider the multiplication modulo. We have to consider 0 eliminated in that case. And जब भी multiplication modulo लेते हैं तो remove करते हैं हम 0। चाइलो बारो ने आपका 16 हो चुका है। We will discuss this example later on. Okay? Please. Yes. ये जो न्यूमरेटर होता है ये अभी बाइनरी अभी ऑपरेशन आपका दूसरा क्लास स्टार्ट हुआ है या नहीं? जस्ट लेट मी नो। नहीं हुआ। अल्लाह दूसरा क्लास है या नहीं है? कैंसिल हो गया। અડધા કેજે છે, અડધા કેજે કેન્સલ થયો છે। સ્ટેટસ શું છે સાચું એ કહો। અરે એચએસ નો છે 10 મિનિટ પછી તો વાંધો નહીં। कैंसिल अभी क्लास है ना आपकी? हाँ या ना? कैंसिल है मैम। नेक्स्ट वीक है नहीं है मैसेज आज सर का चैट में लिखा है। हाँ कैंसिल है। पक्का क्लास नहीं है? यस मैम। ओके यस मैम स्क्रीनशॉट पोस्ट करें। नहीं, मैं एज्यूम कर लेती हूँ आप लोगों ने बोला मतलब कि नहीं है क्लास आपकी। मैम हाँ जी। ये बाइनरी ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं या एक ही नंबर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा उसको? मतलब मैं समझी नहीं क्वेश्चन। ये जो अभी वो वेद ने बोला था ना कि जो 2 की पावर 3 का ऑर्डर 3 हो सकता है ये 2 का, तो उसमें न्यूमरेटर 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 6 है। तो हम लोग को 6 मतलब न्यूमरेटर को ऐसे मतलब हाँ वो तोड़ सकते हैं या मैंने गलती कर same? दी थी, मैंने 4/3 कर लिया था, वो डिवाइड नहीं करना है। अब न्यूमरेटर को 1 नंबर चीज को कंप्लीट करने दो, वो क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर वो होगा 8/6। हाँ तो वो 8 को हम लोग 4 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। लिखो लेकिन वो बाद नहीं में करना है आपको वैसा। रिमाइंडर ही लिखना है। आप 4 × 2 लिखोगे, उसके बाद क्या करना है बोलो। तो फिर 2 3 × 6 हो जाएगा ना, तो 4/3 तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा ना। हाँ मैंने भी वही गलती की थी, वैसा नहीं करना है। तो मॉड मॉड्यूलो 6 के 3 हो लिए 2 जाएगा। और 3 दोनों से डिविजिबल है ना, वो मॉड्यूलो 3 हो जाएगा। हाँ जो मॉड्यूलो 6 आप करना है। करोगे वो मॉड्यूलो 3 हो जाएगा, मॉड्यूलो 6 नहीं रहेगा। ओके समझ में आ रहा है? आपको 6 से ही डिवाइड करना है उस चीज को। ओके तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है तो आपका डिवीजन में 6 ही रहेगा। तो 6 रहने के लिए आप ये टर्म को कैंसिल नहीं कर सकते हो, उसको न्यूमरेटर के साथ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। देयरफॉर रिस्पेक्टिव मॉड्यूलो विल बी आल्सो गेट चेंज्ड। ओके हाँ जी। तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ओहो विवेक भाई ने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। थैंक यू विवेक। मैम वो रेगुलर है मैम, बहुत लाइक एक्टिव। अच्छा बस पीआर है क्लास का? नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं है नहीं, बस वो मैं हूँ मैम। मैम वो अंदर से इच्छा है उसकी बनने। नेक्स्ट लेवल है बट पीआर मैं हूँ।
पीआर क्या होता है भाई? मैम वो PR मीडिया नहीं वाला CR मैम। सीआर तो सीआर आपको है ही नहीं मैम हमारी क्लास का कोई, हमारी क्लास में ही नहीं कोई सीआर। नियम है मैम, नियम बाजू कोई वाली नहीं क्लास है। से हमारा भी किया। कोऑर्डिनेशन तो करते हैं तो तो CR की विवेक के जरूरत ही अंदर नहीं से है। इच्छा है तो बना दो ना उसको, कोई नहीं आता। मैम हम तो बनाना चाहते हैं। भाई जयपाल तो बाय। जयपाल बन रहा है। नहीं मैम। हाँ भैया मैम चेंज टॉपिक प्लीज। हाँ। तो देखिए अभी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए चेक करना है हमें। मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स जब आप लोगे तो दैट यू हैव टू करस्पॉन्डिंग चेंज। एक्चुअली है ना, इक्विवेलेंस क्लासेस आते हैं मॉड्यूलो क्लासेस के बाद, इक्विवेलेंस क्लासेस आते हैं। ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है मैं आपको बताती हूँ अभी। मैम मीटिंग कैंसिल की है पर सर ने वीडियो चालू किया है। तो इफ यू वांट टू लीव देन यू कैन लीव द मीटिंग। अरे मैम वो शेड्यूल करके रखते इसलिए अपने आप चालू हो जाती है, जब तक कैंसिल नहीं करे ना इसलिए। हाँ मैम हम लोग तो अटेंड नहीं करेंगे ना, ऊपर लिखा हुआ है कि अब नहीं है आज क्लास, तो क्यों अटेंड करेंगे? दैट इज अप टू यू। अरे मैम लेकिन ये कहना चाहिए कि मैडम ने क्लास लिया था इसलिए हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। हाँ मैम ऐसा नहीं बोल सकते मैम, वो विवेक संभाल लेगा। वही मैम फिर आप पे नाम ना आ जाए मैम। हाँ मैं इसीलिए बोल रही हूँ, विवेक की फिर जिम्मेदारी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीरा मैडम क्लास ले रहे थे इसीलिए हम लोग एचएस की क्लास में नहीं हुए। मैम विवेक है ना मैम, वो सीआर है, वो कर लेगा। नहीं रहने दो, अभी आज रहने दो। सर ने गुड ऑलरेडी नाइट। किया थैंक यू है, विवेक। वीडियो पोस्ट किया है सर ने, और सर का क्लास शुरू हुआ है, क्योंकि ये बाद में मेरे ऊपर आएगा। कोई भी आप में से तो बोल ही देगा कि मीरा मैडम क्लास ले रहे थे इसलिए हम लोग एचएस की क्लास में नहीं आए। सो लेट अस मैं कीप। तो नहीं बोलता हूँ। जरूर मैम जरूर, अब बंद कर दो। सम ऑफ यू आर वांट दैट मैडम यहाँ पे लीव कर दे तो हमारे लिए अच्छा हो रहेगा। let us keep this only. We will continue with this example in the next class. Okay? थैंक यू Next मैम। class. Discuss. ओके मैम। Okay. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Yes. थैंक यू मैम।